Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we have completed our third chapter that was all about the South Indian Kingdom and all. तो उसमें अपन ने किसके बारे में, दैट इज़ द नॉर्थ इंडिया, गुप्ता एंड हर्षवर्धन. अपन ने गुप्ता एम्पायर, देन उसके बाद हर्षवर्धन एम्पायर, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था. टुडे विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. It is all about the regional kingdoms, a brief history. अभी आपका ये fourth chapter, it is on the regional kingdom. It is just a brief history. In this, we will be studying about the Pallavas and all. So let's study. 4.1 is the Chalukyas, Pallavas, Pandyas, struggle for supremacy over Peninsula India. In that Chalukyas, Pallavas, Pandyas struggle for supremacy over Peninsula India. Then Rashtrakutas, Pallas, Pratiharas, Tripartiti struggle. Then Rashtrakutas, Pallas, Pratiharas and Parmaras, Tripartis struggle. And literature, religion, art and architecture. Then literature, religion, art and architecture. Now we'll begin with the introduction. The period after the death of Harsha in the mid 17th century AD and the establishment of Delhi Sultanate in the 20th century AD covers a span of 600 years. See, अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा, पहले गुप्तास आए, गुप्ता डिक्लाइन होने लगे तो हर्षवर्धन आया, राइट. अभी हर्षा का भी एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया. लाइक आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, दैट वाज हिज डेथ वाज इन द मिड 17th century AD. और उसके बाद क्या हो गया, देयर वाज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द 20th century AD एंड दिस कवर्ड अ स्पैन ऑफ अराउंड 600 years. Since the days of Maukaris, Kannauj became the seat of power in northern India, a place which Patliputra enjoyed before and Delhi was to enjoy afterwards. अभी क्या हो गया, अभी हर्षा के बाद क्या हो गया, मौकारिस, कन्नौज ये सब आ गए और नॉर्थ इंडिया पे क्या हो गया, मौकारिस, कन्नौज इनका पावर हो गया सब जगह. और पाटलिपुत्र को उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंस था और पाटलिपुत्र उस वक्त इतना अच्छे से डेवलप भी हुआ था. ऐसा नहीं कि सिर्फ अननेसेसरी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, इतना अच्छे से पाटलिपुत्र उस वक्त डेवलप भी हुआ था, राइट. और तब पाटलिपुत्र एंजॉयड इट्स पावर एंड ऑल. और उसके बाद दिल्ली, सेकेंड वॉज द दिल्ली विच वॉज गोइंग आफ्टरवर्ड्स. दिल्ली ने एंजॉय किया सब कुछ. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा इन AD 467, Kannauj lost its status as the capital city briefly. After the death of Harsha in AD 647, अभी हर्षा की डेथ हो गई तो क्या हो गया, कन्नौज का जो स्टेटस था एज अ कैपिटल सिटी, Kannauj lost its status as the capital city briefly. However, in the beginning of the 8th century AD, Kannauj came back as a center of power with a very mighty king यशोवर्मन. अभी कन्नौज जो उस वक्त उनका कैपिटल सिटी वगैरह था वो क्या हो गया, वो उस वक्त धीरे धीरे उसका स्टेटस खोने लग गया. बट कन्नौज का स्टेटस वापस, सेंटर पावर कन्नौज के पास वापस आने लग गई. कब, जब किंग यशोवर्मन केम इनटू पावर. He ruled over a vast empire which included almost the whole of northern India. See, ये जो यशोवर्मन जो किंग आया उसने क्या किया, पूरा नॉर्थ इंडिया, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया यशोवर्मन के हाथ में था. He ruled till about AD 740. See, कब तक रूल किया, he ruled till about AD 750. Kannauj from the 6th century AD till it finally fell to Muhammad Ghori in AD 100 and 144 played an important part in the history of North India and earned the position of not only a political center but also cultural center. See, Kannauj from the 6th century AD, 6th century से लेके फाइनली टिल
फाइनली जब तक ये मोहम्मद गोरी नहीं आया, दैट वाज इन द 1194 AD, तब तक कन्नौज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नॉर्थर्न इंडिया। और उसने सिर्फ अपना एक पॉलिटिकल पोजीशन ही हाल अचीव नहीं किया था, एक पॉलिटिकल सेंटर ही नहीं था, बल्कि इट वाज अ कल्चरल सेंटर ऑल्सो। वहाँ पे कल्चर को भी उसने अच्छे से ग्लो किया था, अच्छे से फ्लरिश हुआ था। कितना डेवलप किया और कितने साल तक डेवलप करके रखा था ये यशोवर्मन राजा ने। वो राजा कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, सोचो। इन द चालुक्यास, पल्लवास, पांड्या struggle for supremacy over peninsular India. In Deccan and on North India, after the Satvana rule had ended in the first half of the 3rd century AD, the Vakataka rose to power in the second half of the 3rd century AD. See, अब क्या हो गया डेक्कन में, क्या हो गया इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। अभी डेक्कन में और साउथ इंडिया में क्या थे, वहाँ पे सतवानास थे, सतवाना रूल दैट। अब क्या हो गया, उनका रूल वहाँ पे ख़त्म हो गया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 3rd सेंचुरी, उनका रूल ख़त्म हो गया। फिर द वकाटका रोज टू पावर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd सेंचुरी AD। अब ये क्या हो गया, वकाटका क्या हो गया, रोज टू पावर। ये पावर में कब आए, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd सेंचुरी AD। द इम्पोर्टेंस ऑफ द वकाटकास एज अ पॉलिटिकल पावर वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय चंद्रगुप्ता II। सी, अभी द इम्पोर्टेंस ऑफ, अभी ये वकाटका जो ये रूलर्स थे उसके, वो भी क्या थे, वो भी पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये किसको समझा, चंद्रगुप्ता II को समझा, who got married his daughter प्रभावंती गुप्ता इनटू द वकाटका फैमिली। तो चंद्रगुप्ता को समझ में आया कि ये जो वकाटका के लोग हैं ये भी बहुत पावरफुल है, अच्छे हैं, और इसका इम्पोर्टेंस उसने कब जाना, जब उसने उनका इम्पोर्टेंस जाना, पॉलिटिकल पावर जाना, तब उसने क्या किया, अपनी बेटी प्रभावंती गुप्ता, इसकी शादी वकाटका फैमिली में कर दी। आफ्टर द वकाटकास 3 मेजर किंगडम्स, नेमली Chalukyas of Badami, Pallavas of Kanchipuram, and the Pandyas of Madurai dominated the Deccan and South India for about 300 years. See, after the Vakatakas, 3 major kingdoms. अभी वकाटकास धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 3 मेजर किंगडम आए। 3 मेजर किंगडम का कौन सा था, फर्स्ट वॉज द चालुक्यास ऑफ बदामी। अब ये चालुक्यास कहाँ के थे, देवर ऑफ बदामी। पल्लवास ऑफ कांचीपुरम, अभी पल्लवास कांचीपुरम के थे, एंड पांड्यास ऑफ मदुराई डोमिनेटेड द डेक्कन एंड साउथ इंडिया फॉर अबाउट 300 ईयर्स। अब ये जो तीनों 3 मेन किंगडम बोले हैं, दैट इज़ द चालुक्यास, पल्लवास एंड पांड्यास, इन्होंने पूरा साउथ इंडिया और डेक्कन को पूरा डोमिनेट करके रखा था। मतलब सब इन लोगों ने साउथ इंडिया और डेक्कन तक अपना कब्जा जमा के रखा था, एंड दैट ऑल्सो फॉर अबाउट 300 ईयर्स। देखो 300 साल तक ये तीनों ने अपना राज्य बना के रखा था वहाँ पे। Then the Chalukyas, as mentioned above, the Vakataka power was followed by the Chalukyas of Badami. As mentioned above, the Vakataka power was followed by, just a minute, as mentioned above, the Vakataka power was followed by Chalukyas of Badami, who played an important role in the history of the Deccan and South India for about 20 centuries until AD 757. See, as mentioned above, the Vakataka power was followed by the Chalukyas of Badami. अभी वकाटका पावर किसके पास था, इट वॉज विद द चालुक्यास ऑफ बदामी, और दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। और ये जो चालुक्यास थे ऑफ बदामी, उन्होंने हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, एंड दैट वाज आल्सो फॉर अबाउट 20 सेंचुरी
until AD 757. When they were overthrown by their feudatories, the राष्ट्रकूटास. अब इनका रूल कब ख़त्म हुआ? चालुक्यास का रूल कब ख़त्म हुआ? जब ये राष्ट्रकूटास आए तब उनका रूल ख़त्म हुआ. They ruled for about 2 centuries. उन्होंने कब तक रूल किया और कितना रूल किया? They ruled for about 2 centuries. The Chalukyas set up their kingdom towards the beginning of the 6th century in the western Deccan Sea. ये जो चालुक्यास थे, what they did? They set up their kingdom. उन्होंने पहले अपना kingdom in the 6th century में चालू किया, especially in the western Deccan. They established their capital of Badami or Vatapi in the district of Bijapur, which today forms a part of Karnataka. See, अब ये जो चालुक्यास आए, they ruled at the beginning of the 6th century in the western Deccan. उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? They established their capital बदामी या फिर वतापी बोलते हैं. और ये कहाँ पे आता है बदामी? It comes in the district of Bijapur and today the Bijapur is a part of Karnataka. We learn about the origin of Chalukyas in Vikramadeva Charita of Bilhana. See, we learn about the origin of Chalukyas. अब ये चालुक्यास कहाँ से आए, इनके ओरिजिन के बारे में, इन सब चालुक्यास की इंफॉर्मेशन अपने को कहाँ से मिली है? We got that information from Vikramadeva Charita of Bilhana. The Chalukyas claimed their descent from Brahma or Manu or the moon. See, Chalukyas क्या what they claim is their descent. मतलब वो कितने descent है, like from Brahma or Manu or the moon. Sorry. Perhaps the Chalukyas thought themselves as the son of God. See, Chalukyas खुद को क्या बोलते थे? कि हम भगवान के बेटे हैं. बाप रे. During this period, no other power in Deccan was important as the Chalukya of Badami until we come to Vijayanagar in late medieval period. See, during this time, अब उस वक्त क्या था? No other power in Deccan was an important. Like Deccan पे इतना अच्छा पावर किसके पास नहीं था जितना चालुक्यास ऑफ बदामी के पास था. मतलब उन्होंने अपना किंगडम इतने अच्छे से एक्सपांड किया था और इतने अच्छे से चला रहे थे कि चालुक्यास के अलावा कोई पावर नहीं थी वहाँ पे. कब तक? जब तक ये विजयनगर इन लेट मिडाइवल पीरियड ये लोग नहीं आए तब तक चालुक्या वॉज इन ग्रेट पावर. मतलब उसके जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था, ऐसा माना गया है. देन द हिस्ट्री ऑफ चालुक्यास. जयसिम्हा वॉज द फर्स्ट चालुक्या किंग. Jayasimha क्या था? He was the first Chalukya king. His son's name was Rana Raga. Jayasimha first king था और उसके बेटे का नाम था Rana Raga. The Chalukya power had a modest start under both of them. Chalukya power क्या था? दोनों के अंदर बहुत अच्छे से चला. Like पहले जयसिम्हा के पास और फिर राणा रागा के पास. First point is the Pulaki Sen I. Pulaki Sen I succeeded Rana Raga. See, पहले जयसिम्हा आया, then राणा रागा आया, अभी Pulaki I आ गया. He was the first great king among the Chalukyas. See, एक अच्छा किंग बोलते हैं. ग्रेट किंग कब बोलते हैं? जब वो कुछ अच्छे काम कर देता है तब. तो ये जो पुलाकिन वन था उसको ग्रेट किंग माना जाता था ऑफ चालुक्यास. ही रूल्ड फ्रॉम अबाउट 535 to 566 AD. He ruled from about 535 to 566 AD. He was the first independent ruler. अरे बाप रे, देखो उस ज़माने का पहला इंडिपेंडेंट रूलर था ये पुलाकासेनी I. He was the first Maharaj in his family. In fact, he is regarded as the
real founder of the Chalukya dynasty. So, he was the first महाराजा in his family. मतलब उनके फैमिली में पहला महाराजा ये पुलाकेनी वन था. और शॉर्ट में ऐसा भी बोलते हैं कि बाबा एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस चालुक्य डायनेस्टी भी पुलाकेसी वन ही है. मतलब प्रॉपर पूरा एस्टेब्लिश करना, ये सारा जो काम किया है वो सारा काम किया है पुलाकेनी वन ने ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. ही टुक अप टाइटल such as वल्लभा, सत्यसराया, राणा विक्रमा एक्सेट्रा. पुलाकेनी वन को लोगों ने टाइटल दिया, अलग अलग टाइटल से उसको नवाजा था. सो ही टुक अप टाइटल सच एज वल्लभा, सत्यसराया, राणा विक्रमा एक्सेट्रा. द इंस्क्रिप्शन रिवील्स दैट ही हैड परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ यज्ञास एंड सैक्रिफाइसेस. जो अपने को इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उससे अपने को क्या पता चलता है, पुलकेशी वन ने बहुत सारे यज्ञ और सैक्रिफाइसेस किए हैं. एग्जाम्पल, हिरण्या गर्भा horse ceremony of Ashwamedha. See, Hiranya Garbha horse ceremony of Ashwamedha, Agnistoma and Vijayapaya. He was a great scholar and had thoroughly studied the Puranas, the Ramayanas, the Mahabharatas. See, तो क्या था, एक अच्छा स्कॉलर था और उसको पुराण, रामायण, महाभारत इन सब के बारे में प्रॉपर पूरा नॉलेज था. देन मनवा, धर्मशास्त्र एंड अदर हिस्ट्री. सी, उसने पुराण, रामायण, महाभारत, मानवा, धर्मशास्त्र एंड अदर हिस्ट्री के बारे में उसको पूरा नॉलेज था. ही इज़ कंपेयर्ड विद सच मिथिकल हीरोज एज यजति एंड दिलीपा. सी, ही इज़ कंपेयर्ड विद सच मिथिकल हीरोज एज यजति एंड दिलीपा. According to Badami inscription, he had laid the foundation of Vatapi fort. जो बदामी इंस्क्रिप्शन है उससे अपने को क्या पता चलता है, he had laid the foundation of Vatapi fort. Though he is not credited with any specific conquest, however, he ruled over the present Bijapur district with his capital at Badami. See, अभी उसने क्या टेरिटरी कॉन्कर की एंड और कुछ स्पेसिफिक कॉन्कर्स, इसके बारे में अपने पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. आज अपने पास उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अपने पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, अपने को इतना पता है आज जो प्रेजेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है उस वक्त उस बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में इसी ने ही रूल किया था. एंड उस वक्त ये जो उसका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट था उसका कैपिटल, उसका किंगडम का कैपिटल था बदामी. विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर we will study the next point. Thank you.